السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، پیارے بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے، بہتر ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ماقبل والے سبق میں ہم نے پڑھایا تھا، چیپٹر نمبر 10 کو پڑھا چکا تھا۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں 11واں چیپٹر دیکھنے والے ہیں یہاں پہ غضنفر صاحب کے بارے میں، پھر ان کا لکھا ہوا جو ناول آپ کے نصاب کے اندر شامل ہے اس کو پڑھنے والے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا درخواست ہے کہ آپ اگلے سبق کو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوسروں تک شیئر کر دیں۔ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ غضنفر صاحب کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ غضنفر 19 مارچ 1953 عیسوی کو بہار کے گوپال گنج ضلع کے چورانو میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گانوں کے مدرسے میں اور اسکول میں پائی۔ گوپال گنج سے کالج BA کرنے کے بعد بہار یونیورسٹی مظفرپور میں MA یعنی اردو کے لیے داخلہ لیا، لیکن 1974 عیسوی کی تحریک کی سرگرمیوں کی وجہ سے صوبہ بہار میں یونیورسٹیاں بند کر دی گئیں اور اسی دوران غضنفر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پہنچ گئے، جہاں سے انہوں نے اردو زبان و ادب میں MA اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کی۔ یعنی کہ بابو یہاں پہ وہی گھسی پیٹی باتیں ہیں، یہاں پہ بیان کر رہے ہیں غضنفر صاحب کے بارے میں کہ ان کی پیدائش ہوتی ہے 6 مارچ 1953 عیسوی کو اور گوپال گنج کی ضلع میں چورانو ایک گاؤں کا نام ہے جہاں پہ یہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں ان کی ابتدائی تعلیم یعنی کہ اسٹارٹنگ کے شروعات کی جو تعلیم تھی یہ ان کے مدرسے میں، ان کے گاؤں کے مدرسے میں ہی، اور اسکول جو تھا ان کے گاؤں میں اس میں یہ ابتدائی تعلیم حاصل کیے۔ گویا کہ یہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم یہ حاصل کیے تھے، دونوں تعلیم سے بہرہ تھے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ گوپال گنج کالج سے BA کرنے کے بعد بہار یونیورسٹی مظفرپور میں MA اردو کے لیے داخلہ لیا۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں 1974 عیسوی کے تاریخ سرگرمیوں کی وجہ سے صوبہ بہار میں یونیورسٹیاں بند کر دی گئی۔ گویا کہ 1974 عیسوی میں جو تحریک چلائی گئی تھی اور جو وہاں پہ تعلیم کے متعلق جو تحریک چلائی گئی تھی 1974 عیسوی میں، تو اس وقت ہوا تھا یوں کہ جتنی بھی یونیورسٹیاں تھیں اس کو بند کر دی گئی تھی، کچھ پل کے لیے بند کر دی گئی تھی۔ پھر کہتے ہیں اسی دوران یہ غضنفر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پہنچ گئے، جہاں سے انہوں نے اردو زبان و ادب میں MA اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں بھی حاصل کی۔ گویا کہ PhD بھی یہ حاصل کیے تھے، PhD بھی کیے تھے۔ اس کے بعد چلیے آگے دیکھ لیتے ہیں۔ بیان کرتے ہیں بابو تدریسی پیشہ وارانہ زندگی کا آغاز علی گڑھ میں تدریسی پیشہ وارانہ زندگی کا آغاز علی گڑھ میں عارضی لیکچرر کی حیثیت سے ہوا۔ پھر یونین پبلک سروس کمیشن نے ان کا سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف انڈین لینگویجز کی اکائی اردو ٹیچنگ اینڈ ریسرچ سینٹر سولن یعنی ہماچل پردیش میں بحیثیت لیکچرر تقرر کیا۔ یعنی کہتے ہیں بابو کہ ان کی تدریس کے مطلب ہوتا ہے درس، اور اسی تدریسن کے معنی آتا ہے پڑھانا۔ تو گویا کہ ان کی پڑھانے کی جو کہتے ہیں نا ان کی ترتیب اور ان کی جو پڑھانا جو شروع کیے تھے، تو یہ پڑھانے والی زندگی میں جو یہ اپنا قدم رکھے تو یہ علی گڑھ میں عارضی لیکچرر کی حیثیت سے یہ پڑھانا شروع کیے تھے۔ یعنی علی گڑھ کے اندر یہ آپ نے پڑھا بھی کہ یہیں سے وہ PhD بھی کیے تھے اور اس کے بعد MA بھی کیے تھے۔ اس کے بعد جب یہ فارغ ہو گئے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے فارغ ہو گئے، تو وہیں پہ عارضی طور پر لیکچرر ہو گئے، لیکچرر کے طور پہ یہ کام کرنے لگے۔ پھر کیا ہوا کہ پبلک کمیشن یعنی پبلک سروس کمیشن نے ان کا سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف انڈین لینگویجز کی اکائی اردو ٹیچنگ اینڈ ریسرچ سینٹر سولن یعنی ہماچل پردیش میں بحیثیت لیکچرر تقرر کیا۔ یعنی کہ ہماچل پردیش کے اندر یہ لیکچرر کے لیے ان کو رکھا گیا۔ پھر کہتے ہیں بعد میں اردو ٹیچنگ اینڈ ریسرچ سینٹر لکھنؤ کے پرنسپل کے لیے ان کا UPSC کے ذریعے انتخاب عمل میں آیا۔ فی الوقت وہ اسی عہدے پر فائز ہے اور لکھنؤ میں مقیم ہے۔ یعنی کہ غضنفر صاحب جو ہے بعد میں چل کر پھر کیا ہوا، ٹیچنگ ریسرچ سینٹر لکھنؤ کے پرنسپل یہ بنے۔ پھر اس کے بعد UPSC کے ذریعے بھی انتخاب عمل، گویا کہ UPSC بھی ان کا کلیئر ہوا، اور یہ آج اسی عہدے پر یعنی UPSC کے ذریعے جو انتخابی عمل آیا تھا، انتخاب جو ہوئے تھے، چنے گئے تھے، تو آج یہ اسی عہدے پر لکھنؤ میں مقیم ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی لکھنؤ میں
ये अभी है। उसके बाद बयान करते हैं कि गज़नफ़र की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ एक हिंदी ड्रामा कोयले से हीरा से हुआ। उसकी इशाअत 1971 ईस्वी में हुई थी। मशरिकी मेयार नक़द उन्वान से उन्होंने 1978 ईस्वी में एक तनक़ीदी किताब शाये की। उस दौरान वो लगातार नज़में ग़ज़लें कहते रहे और रसाइल में उनकी इशाअत भी होती रही। लेकिन हिमाचल प्रदेश में मुलाजमत के ज़माने में उन्होंने फ़िक्शन की तरफ तवज्जो की। 1989 ईस्वी में उनका नावल पानी शाये हुआ। उसी ज़माने में अब्दुस समद का नावल दो गज़ ज़मीन और पैगाम आफाक का नावल मकान मंजर आम पर आए। मतलब यहाँ पे इनको अपनी ज़िंदगी के बारे में बयान किया गया कि किस तरह से ये अपनी ज़िंदगी के क्या कहते हैं रातों दिन के जो वक्त जो औकात थे उन्होंने किस तरह से गुजारे, और फिर उन्होंने ड्रामा निगारी के अंदर भी अपना कदम रखा, और फिर कहते हैं कि नज़में और गज़लें भी कहते रहें, लिखते रहें। फिर आखिर में चल कर कहते हैं इनका 1900 कितना में बाबू 1989 ईस्वी में इनका नावल पानी शाये हुआ था। उसी ज़माने में अब्दुस समद का नावल यानी कि अब्दुस समद साहब का भी नावल दो गज़ ज़मीन और पैगाम आफाकी का नावल मकान मंजर आम पर आए। गोया कि ये तीनों साहिब लोगों का जो नावल जो था वो मंजर आम पर आया। इन तीनों नावलों को हम असर उर्दू नावलों की तारीख़ में निशातुस सानिया का दर्जा हासिल है। निशातुस सानिया का मतलब ये होता है बाबू कि उर्दू नावल के जो मकाम है, उर्दू नावल की जो दुनिया है, इसमें दूसरा दर्जा सेकेंड दर्जा इन लोगों को यानी इन नावलों को हासिल है। ठीक है ना। उसके बाद बयान करते हैं गज़नफ़र ने पानी कहते हैं गज़नफ़र ने पानी से जो सिलसिला कायम किया वह कैंचली 1973 ईस्वी में कहानी अंकल क्या कहा बाबू कहानी अंकल 1994 ईस्वी मम 1998 ईस्वी दोयब बानी 2000 ईस्वी फसो 2003 ईस्वी विश मंथन 2004 ईस्वी की मुतवातिर इशाअतों से मज़ीद मुस्तहकम हुआ। यानी गज़नफ़र ने पानी से सिलसिला जो कायम किया था, यानी कि ये नावल जो लिखना शुरू किए थे, तो ये पानी से ये शुरू किए थे। गोया कि ये नावल जो लिखे थे ना उसी का नाम इन्होंने क्या रखा, पानी रखा था। ठीक है ना। तो यहाँ से जो सिलसिला शुरू किए थे तो लगातार ये जारी रहा और उसके बाद ये लिखते रहे। फिर क्या हुआ कि बाद में कहते हैं कि ज़बान अदब की तदरीसी पहलू और तदरीस शेर व शायरी उनकी दीगर इल्मी किताबें हैं। इनका शेरी मजमुआ अभी शाये नहीं हुआ है। 2006 ईस्वी में इनके अफसानों का मजमुआ हैरत फरोश के नाम से शाये हुआ है। ठीक है ना। यानी कि 2006 ईस्वी में इनका अफसानों का मजमुआ हैरत फरोश के नाम से शाये हुआ। गोया कि ये नावल निगार भी है और अफसाना निगार भी है कि नहीं। दोनों दुनिया में, नावल और अफसाना की दोनों की दुनिया में इन्होंने अपना कदम जमाया है। दोया बानी का हिंदी ज़बान में भी तर्जमा शाये हुआ है। यानी कि दोया बानी ये इनका नावल का नाम है। तो इसको क्या किया इन्होंने, इसका हिंदी ज़बान में भी क्या किया गया, इसको ट्रांसलेट किया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं मासिर फ़िक्शन नवेसों में गज़नफ़र अपने तजर्बाती ज़हन की वजह से पहचाने जाते हैं। एक नावल के बाद दूसरे नावल में उनका बदला हुआ उसलूब अहमियत का हामिल है। उनकी नसर में बेपनाह इंशा पर्दाजाना क्या कहते हैं इंशा पर्दाजाना क़ुव्वत मौजूद है। दस्तानी ज़बान, इख्तियाराती ज़बान और रिवायती बयानिया हर अंदाज़ को उन्होंने अपने नावल में आजमाया है। गोया के कहते हैं यहाँ पे बताया गया कि गज़नफ़र साहब जो अपने तजज़ियाती यानी कि इनका जो तजर्बा है ना, और जो तजर्बा की बुनियाद पर इनका जो ज़हन की सोचने की मादा जो है, इसके वजह से ये पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। फिर कहते हैं नावल के बाद जो दूसरी नावल का जब ये लिखना सिलसिला जब ये शुरू रहा, एक नावल के बाद जब ये दूसरा नावल लिखे तो उसमें क्या हुआ कि उसलूब का मतलब होता है तौर तरीक़ा, तो सब इनका तौर तरीक़ा बदल गया। ठीक है ना। यानी कि जितने भी ये नावल लिखे सब में एक अलग अलग तौर तरीक़ा रहा है। आरी बात समझ में। उसी को इन्होंने कहा कि उसलूब अहमियत का हामिल है, बदला हुआ उसलूब अहमियत का हामिल है। तो ये
उसके बाद बयान करते हैं कि इन्होंने अपने नावल के अंदर क्या कहते हैं, इंशा पर्दाज, उसके बाद दस्तानी ज़बान, इख्तियाराती ज़बान और रिवायतिया बयानिया, यानी रिवायती बयानिया, गोया कि हर उसलूब को और हर तौर तरीक़ा को इन्होंने क्या किया है, अपने नावलों के अंदर आजमाया है। उसी चीज़ को यहाँ पे कहा है बाबू कि दस्तानी ज़बान, इख्तियाराती ज़बान मतलब यानी मुहावरा वगैरह जो होता है ना, यानी इख्तियार का मतलब होता है बाबू पैंचा लेना, इस्तार यस्तईर इख्तियारतन के माना आता है पैंचा लेना, ठीक है ना, ये अरबी का लफ्ज़ है। तो ये सब क्या होता है कि जैसे कि मुहावरा वगैरह बोलते हैं ना, लफ्ज़ कुछ और होता है और उसका माना कुछ और होता है, वही सब चीज़ें। तो गोया कि ये जब ये नावल लिखना शुरू किए थे तो इसके अंदर इस तरह का यानी कि मुहावरों का भी इन्होंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया और हर उसलूब को इन्होंने अपने नावल के अंदर आजमाया है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। इनका लिखा हुआ नावल जो है पानी से जब शुरू किए थे उसी का एक इक़्तिबास है, यानी चुनिंदा कुछ कलाम है जो आपके दरमियान पेश किया जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं बाबू, बयान करते हैं। बेनज़ीर एक बार एक हारे हुए जुआरी और नाकाम शिकारी की सूरत पहाड़ की चोटी से नीचे उतरा और लुढ़कता हुआ आगे बढ़ गया। मतलब बेनज़ीर जो है एक शख्सियत का नाम, एक बंदे का नाम है। तो उसकी कहानी को यहाँ पे बयान किया गया। देखिए कहते हैं, एक हारे हुए जुआरी और नाकाम शिकारी, बात समझ में आ रही है होगी आपको कि नाकाम शिकारी की सूरत पहाड़ की चोटी से नीचे उतरा और लुढ़कता हुआ आगे बढ़ गया, यानी कि चलता हुआ आगे बढ़ गया, पेड़ों से टकराता, पहाड़ों से फिसलता और पत्थरों से ठोकर खाता, डगमगाता, गिरता, संभालता, बयाबान की एक ऐसी वादी में पहुंचा जहां उसे एक बड़ी सी इमारत और इमारत में झिलमिलाती हुई रोशनी दिखाई पड़ी। दश्त दीदा खेजा रसीदा आंखें चमक उठी, यानी उसकी आंखें जो थी वो बिल्कुल क्या हो गई, खुल गई। फिर क्या हुआ, पानो रोशनी के सिमत बढ़ गए। यानी कि जब वो आया, वो एक वादी में पहुंचा, वो बयाबान जंगल में जब वो पहुंचता है, जब देखता है कि उस बीच जंगल में एक इमारत है और उस इमारत में रोशनी, उस इमारत से रोशनी आ रही है, तो इसको क्या हुआ, थोड़ी सी खुशी महसूस हुई उस बंदे को। और फिर क्या हुआ कि उसका पाँव जो है उस रोशनी की सिमत बढ़ते चला गया। उसी को कहा कि पानो रोशनी के सिमत बढ़ गए। वह एक अजीम शान दरवाजे के में दाखिल हुआ और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता हुआ एक वसीअ व अरीज़ हाल में पहुंच गया, यानी कि बहुत लंबा चौड़ा हॉल था उस घर के अंदर। तो वहाँ पे ये पहुंच जाता है बंदा। फिर देखिए आगे क्या बयान करते हैं। हैरत अंगेज हाल के अंदर से घड़ों जैसे सर और नादार बोनों की तरह धड़ वाली अजीब उलहैयत, मुहैयरुल उक़ूल यानी अक़ल को हैरत में डाल देने वाली चीज़ें, मखलूक अपनी बड़ी बड़ी बेडोल आँखों पर मोटे मोटे ऐनक चढ़ाए मुख्तलिफुल अनवा मशगलों में मशगूल नज़र आई। यानी कि बंदा जब वो अंदर जाता है तो वो देखता यूँ है कि उसके अंदर एक अजीब व गरीब चीज़ें उसको देखने को मिलती है। समझ रहे हैं बात को। मुहैयरुल उक़ूल अजीबुल हैयत, यानी अजीब व गरीब उस इमारत के अंदर अजीब व गरीब चीज़ें उसको देखने को मिलती है। तो उसी को इन्होंने बयान किया कि हैरत अंगेज़ हॉल के अंदर से घड़ों जैसे सर और नादार बोनों की तरह धड़ वाली अजीबुल हैयत मुहैयरुल उक़ूल मखलूक अपनी बड़ी बड़ी बेडोल आँखों पर मोटे मोटे ऐनक चढ़ाए मुख्तलिफुल अनवा यानी मुख्तलिफ किस्म के मशगलों में मशगूल नज़र आई। उसके बाद बयान करते हैं, बेनज़ीर की आंखें फैल गई, निगाहें हॉल की हैरत अफजा अशिया के मुहासबे में मसरूफ़ हो गई। यानी कि नज़ीर की आंखें जो है वो चारों तरफ देखने लगी और नज़ीर की हैरत जो हुई वो बढ़ गई। और क्या हुआ कि जितनी भी हैरत ज़्यादा जो चीज़ें थी तो उसके मुहासबे में, मुहासबा का मतलब यानी उसके जांच परख में क्या हो गया, वो लग गया, ठीक है ना। उसके बाद कहता है सफ़ेद दीवारों पर सियाह बरक़ी तारों का सिलसिला ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं तक मकड़ी के जाले की तरफ फैला हुआ था। क्या कहा, सियाह बरक़ी तारों का सिलसिला, ठीक है ना। तो तार वगैरह वहाँ पे लगा हुआ था यानी लेपटा हुआ था। उसका शफाफ शीशे की छत पर रोशनी की नहरें बह रही थी, यानी कि बहुत ज़्यादा बल्ब वगैरह वहाँ पे
लगाया गया था, जिनके अंदर से रंग बिरंग के हेवले उभर रहे थे। हेवले के मतलब क्या होता है बाबू? सूरत वगैरह। क्या होता है? सूरत निकल रहे थे। उसके बाद बयान करते हैं, दीवारों के किनारे चारों तरफ थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर लंबी चौड़ी मेजें बिछी थी, जिन पर तरह तरह की चीजें बिखरी पड़ी थी। मेजों के पास बयान करते हैं कि दीवारों के किनारे चारों तरफ थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर लंबी चौड़ी मेजें बिछी थी, जिन पर तरह तरह की चीज़ें बिखरी पड़ी थी। मेज़ों के पास मुहय्यरुल उक़ूल मुतालों, मुशाहदों और मुराक़बों में मुस्तग़रक़ थी। यानी कि वो देखता है कि लंबी लंबी चीज़ें बिछड़ी पड़ी हैं और सब के सब क्या है, वो अपनी अपनी मुताला में, मुराक़बा के मतलब होता है यानी सर झुका लेना, ठीक है ना। तो गोया कि सब जितनी भी चीज़ों को देखता है तो वो सब चीज़ें अपनी अपनी कामों में मशगूल थी। उनमें से कुछ के आगे आगे बड़ी बड़ी ज़ख़ीम किताबों यानी भारी भरकम किताबों के औराक खुले थे। कुछ के सामने कांच के छोटे बड़े जारों में रंग बिरंग के रकीक मादे भरे पड़े थे। कुछ मेज़ों के ऊपर अजीबो गरीब किस्म के बरक़ी आलात बिखरे पड़े थे, तो कुछ के ऊपर दुखानी औजार गड़े थे। कुछ निगाहों के आगे एक बोर्ड पर बरक़ी कुमकुमे जल बुझ रहे थे, यानी कि एक रोशनी बल्ब वगैरह की मानिंद ये भी होता है, जिनके बटनों पर उनकी छोटी छोटी उंगलियां टिकी थी और नजरें बोर्ड पर बनी मुख्तलिफ साइज़ की घड़ियों की छोटी बड़ी सुइयों की हरकतों सकनात पर मरकूज थी, यानी कि वहाँ पे टिकी हुई थी। ये बंदा देखता है बेनज़ीर, वहाँ पे एक अजीबो गरीब मंजर को देखता है और वहीं के मंजर को यहाँ पे बयान कर रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। बयान करते हैं, कुछ उंगलियां बिजली के नीले पीले हरे उजले और सुर्ख तारों को एक दूसरे के साथ जोड़ने में मशगूल थी। कुछ की आंखें छत पर उभरने वाली हेलियों पर मरकूज थी, यानी कि टिकी हुई थी, तो कुछ की निगाहें खुर्द बीन के शीशियों पर झुकी थी। यानी का बयान करता है, कुछ की आंखें कहीं और थी, उसकी नज़रें थी वो कहीं और झुकी हुई थी, कुछ की नज़रें कहीं और झुकी हुई थी। इस तरह से सबको बयान करते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, कहते हैं बाबू, बेनज़ीर अनोखी अशिया की जाज़बियत और उसके बाद अजीबुल हयत हस्तियों की महवियत में मुनहमिक था कि उसे अपनी पुश्त पर उंगलियों की हल्की सी थपथपाहट महसूस हुई। निगाहें पीछे पलट आई, वैसे ही एक अजीबुल हयत हस्ती सामने खड़ी उसे घूर रही थी। यानी कि वो जैसे अंदर गया वहाँ पे सोच रहा था, और अजीबुल हयत जितनी भी चीज़ें थी जो अजीबो गरीब उसको मालूम हो रही थी, उसको में डूबा हुआ था, लगा हुआ था, तब तक उसके पीछे उसके क्या कहते हैं पीठ पर थपथपाहट की आवाज़ महसूस होती है। फिर वो पीछे देखता है तो उसे कोई चीज़ें घूर रही थी, कोई मतलब वहाँ पे कोई बंदा था। तुम कौन हो? सवाल करता है, तुम कौन हो, यहाँ किस तरह किसके लिए आए हो? फिर ये बेनज़ीर कहता है, मैं एक प्यासा हूँ, पानी की तलाश में भटकता हुआ इधर आ निकला हूँ। आप कौन हैं? फिर वो नज़ीर क्या कहता है, आप कौन है? बयाबान में यह इमारत कैसी है और यहाँ क्या हो रहा है? तुम जो यहाँ पे हो तो वो क्या कर रहे हो? तो वो बंदा कहता है, मतलब जो वहाँ पे बयाबान जंगल इमारत में जो बैठा हुआ था, वो कहता है कि मैं एक मुहक्किक हूँ और ये इमारत दारुल तहक़ीक़ात है। मुहक्किक का मतलब होता है तहक़ीक़ करने वाला, यानी रिसर्च करने वाला। यहाँ मौजूदात का मुताला होता है, यानी कि जो भी चीज़ें दुनिया के अंदर मौजूद हैं उसके ऊपर मुताला किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, और गैर मौजूदात की खोज की जाती है, यानी कि जो चीज़ नहीं है उसके बारे में खोज की जाती है। अशिया की माहियत मालूम की जाती है, यानी कि जो भी चीज़ें है उसकी हकीकत को मालूम किया जाता है। कायनात के अंदर होने वाले तग़य्युरात के असबाब व इलल का पता लगाया जाता है, यानी कि कायनात के अंदर जो तग़य्युरात जो होते हैं, यानी कि तब्दीलियाँ जो होती है, तो उसके सबब और उसकी इल्लत क्या है तो उसका पता लगाया जाता है। इस जहान बेकिनार में इम्कानात पर गौर व खौज किया जाता है। गोया कि जहान बेकिनार का मतलब ये हुआ कि ये इस दुनिया में, ये मतलब वो दुनिया जिसका कोई किनारा नहीं है, तो इसके ऊपर क्या किया जाता है? रिसर्च किया जाता है।
मुमकिन चीज़ों पर गौर व फिक्र किया जाता है, नए नए हक़ाइक़ दरियाफ्त होते हैं और इजादात व इंकिशाफात से दुनिया को रोशनास कराया जाता है। गोया कि जो भी चीज़ें इंकिशाफ होती है और खुलती है, और मतलब क्या कहा कि जो भी चीज़ें हम लोग को यहाँ से पता चलती है तो फिर क्या होता है, दुनिया वालों को उसकी खबर दी जाती है। उसके बाद बयान करते हैं कि लगता है मैं मुनासिब मकाम पर आ पहुँचा हूँ। बेनज़ीर कहता है लगता है मैं मुनासिब मकाम पर आ पहुँचा हूँ, शायद अब मेरी मुश्किल आसान हो जाए। यानी कि बेनज़ीर की जो मुश्किलें थी वो आसान हो जाए। तुम्हारी क्या मुश्किल है, वो बंदा पूछता है जो उसके पास था कि तुम्हारी क्या मुश्किल है। कहता है कौन सा पेचीदा मसला है जिसकी उक़्दा कुशाई चाहते हो। उक़्दा कुशाई का मतलब होता है यानी जिसका हल कराना तुम चाहते हो। बंदा बोलता है नज़ीर जनाब मेरी बस एक ही मुश्किल है और वह है मेरी प्यास। ये मतलब वो कहता है कि मुझे प्यास लगी हुई थी, तो मेरी यही मुश्किल है कि भाई मुझे जो प्यास लगी हो मेरी प्यास बुझ जाए। आवाज़ रुक गई और ज़बान खुश्क होंठों पर फेरने लगी। यानी कि जब प्यास लगती है ना तो फिर इंसान बोलता है तो उसकी आवाज़ें रुक जाती हैं और उसकी ज़बान जो है वो खुश्क होंठों के ऊपर क्या होती है, फेरने लगती है। उसके बाद कहते हैं वाकई तुम बहुत प्यासे लगते हो। बंदा बोलता है जो उस इमारत में था, बोलता है कि तुम वाकई बहुत प्यासे लगते हो। मैं अभी आया, वो एक मेज़ के पास जाकर लौट आया, लो इसे चूसो। मतलब कोई चीज़ें वो देता है न चूस वगैरह की शक्ल में रहा होगा। कहता है कि लो इसे चूसो, ये आबियाज़ा है। क्या बाबू, ये आबियाज़ा मतलब ये है कि वो लेमन चूस यानी कि चॉकलेट वगैरह जो होता है ना उसी के शक्ल में ये भी एक चीज़ें होती है। इससे तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। उसने अपने हाथ की सफ़ेद चौकोर टिकिया बेनज़ीर की तरफ बढ़ा दी। यानी कि उसके हाथ में जो भी चीज़ें छोटी सी जो चीज़ थी बेनज़ीर की तरफ बढ़ाई। क्या सचमुच इससे प्यास बुझ जाएगी? नज़ीर कहता है क्या सचमुच इससे प्यास बुझ जाएगी? बेनज़ीर ने टिकिया अपने हाथ में लेकर निगाहें उस पर मरकूज़ कर दी। यानी कि अपने हाथ में तो ले लिया और उसको देखता रहा। फिर कहता है कि चूस कर देखो। क्या बंदा जो यानी कि जो ला कर दिया था वो कहता है कि चूस कर देखो, तुम्हें खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, उसने टिकिए को मुंह से लगाया। कैसा है? कहता है ठंडा है। और जायका कैसा है भाई? तो मीठा है। पूछता है कि अच्छा लग रहा है ना? तो कहता है हाँ अच्छा लग रहा है, ये बात हमारी दरियाफ्त है। अब सुनाओ अपनी प्यास के मुतालिक तुम और क्या कहना चाह रहे थे। जब इतनी बातें जब हो गई वो कहता है कि अब तुम सुनाओ कि तुम्हारी परेशानी क्या थी, प्यास के मुतालिक तुम क्या कहना चाहते थे। तो उसके बारे में बयान करता है। चलिए अब फिर आगे देख लेते हैं। प्यास हाँ याद आया, मैं अपनी प्यास के बारे में कह रहा था कि एक बड़ी सी चुस्की लेकर उसने टिकिए को ज़बान से अलग कर लिया। ज़बान होठों पर जमे आबियाज़ा के कतरों को चाटने लगी। ठीक है ना, यानी आबियाज़ा जो मतलब उसके असरात वगैरह जो उसके होठों पे जो लगे हुए थे ना तो उसको चाटने लगे। क्या कह रहे थे? फिर वो बंदा बयान करता क्या कह रहे थे, यही कि हमारी प्यास ने इस बयाबान में एक तालाब तलाश किया। मतलब ये कि गुजरी हुई कहानी को बयान कर रहा है बेनज़ीर। कहता है कि यही कि हमारी प्यास ने यानी कि जब मुझे प्यास लगी थी तो इस बयाबान में एक तालाब तलाश किया जिस पर मगरमच्छों का कब्जा था। तालाब से पानी हासिल करने के लिए हमें उन मगरमच्छों से जंग करनी पड़ी। इत्तेफाक से जंग में हम जीत गए। मगरमच्छ तालाब से भाग खड़े हुए, लेकिन जाते जाते कमबख्त तालाब के पानी में जहर घोल गए। ठीक है ना, यानी कि वो बयान करता है कि वो लोग तो भाग गया, सारा मगरमच्छ चला गया, लेकिन पानी में जहर घोल गया। बड़ी मुश्किल और जहाँ फशानी से हम कोए जहर महरा को काट कर उसके सब्ज पत्थरों से जहर को असर को ज़ायल किया। मतलब ये कि जहर मरा यानी कि जहर को तोड़ने वाली, जहर को चूसने वाली एक चीज़ है जहर को काटने वाली। तो गोया कि इसके ज़रिए इन्होंने क्या कर दिया कि तालाब का जो पानी था, जो पानी के अंदर जो जहर घुल गया था उसको ये ज़ायल कर देता है। ठीक है ना, कहता है तिश्नगी मिट जाने के बाद, तिश्नगी यानी प्यास मिट जाने के बाद हम तालाब की हिफाजत के लिए अपने कुछ साथियों को वहीं छोड़कर अपने अपने ठिकानों की तरफ लौट गए। कुछ दिनों बाद हमें फिर प्यास महसूस हुई और हम अपनी प्यास बुझाने के लिए वापस आए तो तालाब को गायब पाया। क्या कहता हो बंदा? तालाब को हमने गायब पाया, यानी कि वहाँ पे तालाब तो था नहीं।
तालाब की जगह बुलंदो बाला चेहार दीवारी देखकर हमारी हैरानी बढ़ी और हम तालाब की तलाश में पहाड़ की चोटी पर जा चढ़े। इनका कहा कि तालाब की तलाश करते करते हम चोटी पर, पहाड़ की जो चोटी थी यानी उसकी बुलंदी पर हम जा चढ़े। हमारी हैरत और बढ़ गई जब हमने तालाब को चार दीवारी में घेरा देखा, मुहाफिजों दोस्तों को गायब पाया और सतह आप पर फिर से तैरते हुए मगरमच्छों की सरगोशियां सुनी और उन सरगोशियों में इंसानी लहजा महसूस किया। यानी वहाँ पे कुछ इमारत वगैरह बन गई थी। तब से हमारे हवास हैरान और अजहान परेशान है, यानी कि हम परेशान हैं, ज़हन हमारा परेशान है और हम इस बयाबान की खाक छानते फिर रहे हैं। हम तो इन हादसात और तगय्युरात की वजूहात समझने से कासिर हैं। मुमकिन है कि आप हजरात इन हैरत आफरी वाक़यात के असबाब बता सकें और तालाब को मगरमच्छों से आज़ाद कराकर हमें तशनगी से निजात दिला सकें। मतलब ये कहता है कि भाई कि हम तो इसको गायब पाए थे और फिर उसके बाद ये वहाँ पे फिर हमने देखा कि मगरमच्छों का कब्ज़ा है, लेकिन मगरमच्छों की सरगोशियाँ सुनी और उन सरगोशियों में इंसानी लहजा क्या था भाई, इंसानी लहजा को महसूस किया था। तो फिर वो जो बंदा इमारत के अंदर जो मौजूद था यानी जंगल के अंदर, वो कहता है कि देखिए आगे क्या बयान करता हो, कहता है उससे, ठीक है तुम्हारी रुदाद बड़ी हैरत अंगेज और दिलचस्प है, हम इसमें ज़रूर दिलचस्पी लेना चाहेंगे। क्या कहता है बाबू, हम इस पे ज़रूर दिलचस्पी लेना चाहेंगे और हम इसमें ज़रूर क्या कहते हैं, हम इसमें ज़रूर दिलचस्पी लेना चाहेंगे। तुम यहीं बैठकर अबियासा चूसो, मैं तुम्हारे इस मसले को अपने रुफ़क़ा के सामने रखता हूँ। यकीन जानो तुम्हारे इस उक़्दे का हल हम ज़रूर तलाश करेंगे। वह हाल के वस्त में जाकर खड़ा हो गया, यानी कि इसको बोला कि तुम अबियासा चूसते रहो, तुम खड़े हो जाओ और हम अपने दोस्तों के पास जाते हैं और वहाँ से इस मसले की तलाश में जुट जाते हैं। क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर एक अजीब सा ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, शिशियो शांग। इस अजीबुल हयत मखलूक के होठों से यह अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ निकल कर हॉल में गूंज पड़ी। क्या कहा, यानी कि ये अजीब व गरीब ये आवाज़ थी और जितने कहते हैं हॉल के अंदर गूंज पड़ा। घड़ों जैसे सरों वाले तमाम बोने चौंक पड़े और अपने कामों को छोड़कर उसके करीब जमा हो गए। यानी जो बंदा था वहाँ पे उसके पास जमा हो गए। सबकी आंखें अपने अपने ऐनकों से निकलकर उसके ऐनक में दाखिल हो गई। मतलब सबों ने जिस काम में लगे हुए थे उसको छोड़कर वो अपने अपने उसके तरफ देखने लगे। फिर देखिए अभी अजीबो गरीब यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, बो बियू बयांग आयु अबियाजांग नौनियो नयांग तोतियु ततांग जोजियु जुस्तांग अजीबुल खिलकत मखलूक की इन अजीबुल सूद कलिमात पर क्या कहते हैं, खपचियों जैसे धड़ों पर टिके तमाम घड़े हिलने लगे। यानी कि जितनी भी आवाज़ें थी ये अजीबुल खिलकत, यानी है कि वहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी वो सब के सब एक अजीब व गरीब थी, जो अक़ल को हैरत में डाल देने वाली सारी वहाँ पे चीज़ें थी। गोया कि वो मशीन और कुछ आलात वगैरह रहे होंगे, ठीक है ना। साऊ यू सांग, इसकी आंखें उन्हें तकने लगी। क्या कहा, साऊ सांग, उसकी आंखें उन्हें तकने लगी। हो यू हांग साऊ ससांग, हिलते हुए घड़े बज उठे। हिलते हुए घड़े क्या हुए, बज उठे और इस अजीबुल हयत मखलूक की आंखें चमक उठी। उसके थे पानो एक मेज़ के पास जाकर वापस बेनज़ीर के पास लौट आए। दूसरे तमाम मुहय्यरुल उक़ूल बो ने अपनी अपनी नशिस्तों पर क्या कहा बाबू, नशिस्तों पर पहुंच गए। यानी कि वो जो बंदा था वहाँ पे गया, आगे बढ़ता है, फिर बढ़कर जब ये पीछे लौट आता है तो जितनी भी चीज़ें वहाँ पे अजीब व गरीब जो चीज़ें थी वो सब के सब क्या जहाँ पे फैले थी वहीं पे वो चली जाती है, ठीक है ना। आगे बयान करते हैं, देखते हैं ये बाबू। उसके बाद लो अबियाज़ों का यह बक्स अपने पास रखो और दरवाजे के पास बैठकर इत्मीनान से इन्हें चूसते रहो। वो बंदा कहता है कि जो उसके अंदर था इमारत के अंदर, कि लो इसे चूसते रहो, हम तुम्हारी मसला की उक़्दा कुशाई में मशगूल होने जा रहे हैं। वो आगे बढ़कर एक मेज़ के पास खाली कुर्सी पर बैठ गया। उसकी उंगलियां और आंखें इल्मो अमल में मसरूफ़ हो गई, यानी कि उसकी रिसर्च में, यानी उसके खोज में लग गई।
बेनज़ीर हाल से निकल कर दारुल तहकीकात के दरवाजे के पास आ गया, यानी तहकीकात का जो दरवाज़ा था, जो घर था, पास आ गया और नताइज के इंतज़ार में शब रोज़ गुजारने लगा। यानी कि नतीजा कब आएगा उसके इंतज़ार में वो दिनों रात गुजारने लगा। वक्त को पर लगते रहे, परवाज़ बुलंद होती गई। इंतज़ार की सातों के दरमियान उसे उकताहट महसूस होने लगी। कुछ अरसे तक उसने सब्र व तहम्मुल से काम लिया, लेकिन आखिरकार वह हद भी आ पहुंची जहां से आगे जाना नामुमकिन हो जाता है। यानी कि इतनी ज़्यादा वो परेशान हुआ ना, यानी कि वक्त की घड़ी ख़त्म हो गई और वो जितना देर वहाँ पे बैठा हुआ था वो लगा उसके इंतज़ार में। तो जब उधर से देखा कि कोई नतीजा नहीं आया तो ये इससे अब रहा नहीं गया, तो वही कह रहा है, उकता कर वो खड़ा हो गया। उसके कदम हॉल के अंदर दाखिल हुए। वह इस अजीबुल हय्यत बोने के पास पहुंच गया जिसने उसकी मुश्किल उक़्दा कुशाई का यकीन दिलाया था। यानी कि वो बंदा जो था उसकी मुश्किल कुशाई का यकीन दिलाया था। कुछ मालूम हुआ क्या कहते हैं, कुछ मालूम हुआ कोकियो का कांग बेनज़ीर की आवाज़ पर वो चौंक पड़ा। यानी कि वो जो था वहाँ पे बेनज़ीर की आवाज़ पर वो चौंक पड़ा। फिर उसके बाद कहता उसकी निगाहें आलात से हटकर बेनज़ीर के उकताहट से भरे चेहरे पर मरकूज हो गई। नहीं, अभी कुछ नहीं मालूम हुआ, वक्त तो काफ़ी लग गया। काम दुश्वार है, वक्त तो लगेगा ही। इतना वक्त लग गया और कुछ भी मालूम न हो सका। यानी कि काम जो तुम दिए हो ना वो काफ़ी वो लंबा चौड़ा काम है। देखो खुद कहता है, बयान करता है यहाँ पे, तुम्हारे जिस काम का बेड़ा हमने उठाया है वो इतना मुश्किल है कि इसके लिए इतना वक्त कुछ भी नहीं है। लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही ओब गए हो, आओ मेरे साथ। कहाँ? यानी वो बंदा पूछता है कि कहाँ? तो देखो यहाँ पे बयान करता है, आओ तो मालूम हो जाएगा। वह उठकर दरवाजे की सिमत बढ़ गया। बेनज़ीर खामोशी से उसके पीछे चल पड़ा। हॉल के दरवाजे से निकलकर उस अजीबुल हय्यत मखलूक के पानों दाहिनी तरफ मुड़ गए। थोड़ी देर बाद वह एक गुंबद नुमा गोल से कमरे के पास रुक गया। बेनज़ीर भी करीब आ गया। उसने अपना छोटा सा हाथ सफ़ेद दीवार पर रख दिया। हाथ पड़ते ही दीवार में एक बड़ा शिगाफ बन गया, यानी कि दीवार में एक दरवाज़ा बन गया, खुल गया। उसके कदम अंदर दाखिल हो गए। बेनज़ीर के पानों शिगाफ के पास पहुंचकर ठिठक गए। उसके बाद कहता है, वो बंदा कहता है, घबराओ नहीं, बेखौफ ख़तर अंदर आ जाओ। बेनज़ीर के ठिठके हुए क्या कहते हैं, ठिठके हुए पानों शिगाफ में दाखिल हो गए। उसके अंदर पहुंचते ही शिगाफ बंद हो गया। दीवार पर शिगाफ का नामो निशान तक बाकी न रहा। यानी कि वो वहाँ पे जाहिर सी बात है, रिसर्च वाला जो भी रूम होता है ना वही का अजीबो गरीब होता है, और वो उसके अंदर इतनी आलात और इतनी चीज़ें उसके अंदर डाल दी गई रहती है और वो इस तरह से बनाया गया रहता है कि इंसान जाकर वहाँ पे वो एक अजीबो गरीब चीज़ों को वहाँ पे महसूस करता है। ठीक है ना। बहरहाल बयान करते हैं आगे, देखिए कहते हैं, दीवार पर हाथ रखने से शिगाफ फिर भर आएगा, आओ अंदर चलो। वह आगे बढ़ गया। बेनज़ीर को पानों आहिस्ता आहिस्ता डरते हुए आगे खिसकने लगे। निगाहें दरो दीवार के मुहासबे में मसरूफ़ हो गई। यानी कि नज़ीर तो अंदर तो जा रहा था लेकिन उसकी निगाहें जो थी वह इधर उधर लगी होती। कुशादा कमरे में दो दिया रोशनी झिलमिला रही थी, थोड़ी थोड़ी रोशनी झिलमिला रही थी। छत और दीवारों का सियाह रोगन सफ़ेद रोशनी में और भी चमचमा रहा था। यानी कि ऊपर जो रोशनी जो थी, सफ़ेद जो रोशनी थी वो और ज़्यादा चमचमा रही थी। सामने की दीवार पर एक बड़ा सा मुहद्दब शीशा आवेज़ा था। शीशे के दोनों पहलू में लकड़ी के बोर्ड पर अनगिनत बटन क्या कहते हैं, टिनके थे। दाहिने पहलू के बोर्ड पर बटनों के इर्द गिर्द वो कलमों कुमकुमे जल रहे थे जिनमें से रंग बिरंग की रोशनियां निकल रही थी। कुमकुमे जो होता है ना वो भी एक जलने वाली एक चीज़ होती है, बल्ब के मानंद ये चीज़ें होती है। ठीक है ना। तो जिनमें से रंग बिरंग की रोशनियां निकल रही थी। बाएं पहलू के बोर्ड के नीचे एक चिकनी चमकीली लकड़ी का बक्स नुसूब था जिसके ऊपरी सिरे से ज़रा नीचे एक चौकोर सुराख बना था और इस सुराख के बिल्कुल करीब में एक सुर्ख रंग का बटन चमक रहा था। फिर आगे बयान करते हैं, आप मुझे यहाँ किस लिए लाए हैं? तुम्हारी उकताहट दूर करने के लिए। क्या कहा? यहाँ मेरी उकताहट दूर हो जाएगी? हाँ, यहाँ तुम्हारे चेहरे से ये बदरंग लकीरें उतर जाएगी, आंखों से बेजारी के बादल छट जाएंगे
اور دل میں بےکیفی کی جگہ کیف آگے کیفیت محسوس ہوگی. یعنی وہ بندہ کہتا ہے کہ تم جو پریشان تھے نا، اور ہم جو ریسرچ میں لگے ہوئے تھے، اور تم کو ہم نے جو کہا تھا کہ ہم تمہاری پریشانی کا حل کر کے دکھائیں گے، تو تم یہاں پر آنے سے تمہاری ساری کیفیتیں جو ہے، یعنی کہ بے چینی کی کیفیت جو ہے وہ سب کی سب کیا ہوگی، ختم ہو جائے گی. مجھے تو نہیں لگتا کہ اس بند کمرے میں ایسا کچھ ہوگا. وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ اس بند کمرے میں کچھ ایسا ہوگا. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، لو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. اس نے ہاتھ بڑھا کر شیشے کے دائیں پہلو کے بٹنوں میں ایک بٹن کو دبا دیا. بے جان دیوار میں جان پڑ گئی. شیشہ متحرک ہو گیا. خاموشی بولنے لگی. یعنی کہ جیسے وہ شیشہ کے اوپر ہاتھ رکھا تو بے جان شیشہ جو تھا وہ بولنے لگا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس کی آواز رک گئی اور خاموشی سے یہ اس کو دیکھنے لگا. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ رہا آپ کے درمیان غضنفر صاحب کا لکھا ہوا ناول پانی، جو آپ کے درمیان پیش کیا گیا. تو یہ ناول جو ہے یہ پوری کہانی نہیں ہے، یہ پوری باتیں نہیں ہیں. پھر آگے کیا ہوا، پھر کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، ان کی جو پوری کہانی ہے، کہانی کا ایک نچوڑ بیان کیا گیا اس کے اندر. اقتباس کے اندر ہی یہی ہوتا ہے کہ نچوڑ من جملہ جو کلام ہوتا ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. باقی تو یہ آپ کے درمیان بیان کیا گیا. میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. آپ کو بس 1 سے 2 بار 3 بار اس کو پڑھ لینا، اور اس کے اندر کے جو بھی الفاظ و معنی ہے کتاب کے اندر دیا گیا، آپ اس کو یاد کر لینا ہے. پھر تو اب اجازت دیجیے، ہم رخصت ہوتے ہیں. پھر ہم ملیں گے اگلے والے سبق میں اس کے سوال اور جواب کے ساتھ. اسی پر اختتام کرتے ہیں. خدا حافظ.